Hello everybody, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of July. In this video we will be discussing a total of 17 current affairs that will be beneficial in your learning. Some of them we will be talking about here are that world's most powerful passport. This index has been released. We will be talking about which country has secured the top position and India's rank is what, as well as India is having visa free entry in how many countries. Then WMO, they collaborated with UN's FAO to enhance the early morning for agriculture sector, and Zimbabwe, they have joined the UN Water Convention to strengthen the transboundary water cooperation. We will be discussing all these news in details along with multiple other news that will be beneficial in your learning. So stay tuned till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud current affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. And the winner for the last video here is Gokul Govindan 4449. You can contact us on this given mail or you can call us on this mobile number, and we'll make sure that our team rewards you with current affairs subscription of 1 year. Now let's move to the demo question. This will be giving you an insight about how important the option revision is. The question asked here is, which country has recently joined the Convention on the Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes, that is UN Water Convention. So which is that country? That is Zimbabwe. They have joined this convention on the protection and the use of transboundary water courses and international lakes, so that the lakes here, right, the area surrounding it, the biodiversity here, correct, it will be maintained properly, because we know in order to sustain a biodiversity there, the ecosystem should be clean, right, the water, right, the lakes, the rivers, or right, the water bodies near Zimbabwe, if they are polluted, they need to be treated so that the pollutions from them can be eliminated, the harmful chemicals can be eliminated, so that the proper ecosystem of biodiversity can flourish. Then if we look at the rest of the options here, if we talk about Slovenia, Slovenia became the 39th member to join the Artemis Accord. Now what is this Artemis Accord? This accord stands that, or this is basically a treaty that was launched by NASA for the peaceful exploration of space. For the peaceful exploration of space. Then if we talk about Sweden, Sweden became the 38th nation to join this Artemis Accord. And 39th is Slovenia, right, which was the 37th, it was Switzerland. Then if we talk about Romania, remember Romania along with Bulgaria, they have become the newest member state to partially join the Schengen area of the Europe's ID check free travel zone, right. So these are your option revision, and further such options and MCQs you can go and discuss and do on the DCA quiz that is available on two platforms. That we have an application, Careers Cloud mobile application, and second is website careerscloud.in, and these all things will be very beneficial in your mind mapping as well as for competitive exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Now students, let's move to the national affairs. CDOT, that is Center for Development of Telematics. This is a premier telecom research and development center. This under the Department of Telecommunication, right. They have recently signed an agreement with IIT Roorkee and Mandi. First is IIT Roorkee, second IIT Mandi, for the development of cell-free 6G APs. What is this APs? That is your access point, right? So cell-free 6th generation
access points, right? And we know that what is sixth generation? It is basically a telecom technology. That means we can say, we know that earlier it was third generation of internet that came into place, then fourth generation, multiple organizations are using this, then we have launched 5G also. Now we are in the process of launching sixth generation of technology, right? This will be provide high internet speeds, right? And if you remember, now we are talking about audio, AR, artificial reality, virtual reality, right? In those segment, high connection speed is required. So in order, these technology will be seeing in the market when this sixth generation of internet came into place, right? So somewhere we will be seeing this will be one of the use cases. I won't say this is the entire thing for this is launched, but it will be one of the use case here, correct? And it is CDOT. They have signed this agreement with IIT Roorkee and Mandi for the development of this cell-free sixth generation APs are your access points. Here understand, we are talking about cell-free, right? This cell-free 6G APs. You see the traditional network, they uses cellular topologies, right? Where each cell is serviced by a single base station, that is your 4G or 5G, to service the mobile customers. But in this cell-free, we will be seeing MIMO. That is multiple input, multiple output, that will eliminate the boundaries here. And here we will be able to serve many users simultaneously. This approach, this cell-free 6G approach will eliminate the dead zones where there is no connectivity. It will enhance the signal strength and also boost the data speed, right? If we talk about this CDOT, who is the Chief Executive Officer here? Dr. Rajkumar Upadhyay. Where is the headquarter? It is in New Delhi. Next, here you can see traditional networks, they use cellular topologies, and whereas this cell-free, this will work on MIMO, that is multiple input, multiple output, that will eliminate various cells and it will eliminate the dead zones. It will enhance the signal strength and it will serve many users simultaneously. Moving on, next is international affairs. World's most powerful passport 2024. Here the rank of India has dropped to 82. And which country has secured the top position? It is Singapore. So first thing first, this data is released by which organization? It is Henley Passport Index, right? This is the index and it is released by Henley and Partners. What is the rank of India here? India stands at 80th position, correct? And remember, India stands at 82nd position. India was at the 80th position, correct, last year, but it has dropped to 82nd position now. Now India is having visa free entry to how many countries? Don't get confused. India is 82. India is having visa free entry to 58 countries, correct? And India has been placed at 82nd position along with Senegal and Tajikistan, right? That means India, Senegal and Tajikistan, they are sharing the same place in the Henley Passport Index. Now, which is the country that secured the top position? It is Singapore, and Singapore is having visa free entry to 105 countries, right? Then 5 countries they shared the second spot. Which are those countries that share the second spot? They are France, Italy, Germany, Spain and Japan. Moving on, if we talk about Henley and Partners, who is the Chief Executive Officer here? Dr. Jaren Stephan. And where is the headquarter? It is in London, UK. Moving on, here you can see Singapore first position. These are the 5 countries on second position and 7 countries on the third position. Next, WMO. What is WMO? WMO stands for World Meteorological Organization. They have recently collaborated with Food and Agriculture Organization to enhance the early warnings for the agriculture sector. See, this World Meteorological Organization, this basically gives data about the weather, right? This gives weather forecast, and these weather forecasts using the satellites are of high importance to the farmers. So recently in WMO, they have collaborated with United Nations Food and Agriculture Organization so that early warning can be given to the agriculture sector about, say for example, there will be high rainfall, right? So farmers should prepare accordingly. If there will be a drought, then the farmers can prepare for the same accordingly, right? To help those farmers,
to give them the right information about the weather, about the situation that can arise in future, right? This will be a very beneficial initiative, and this will be known as early warning for all, EW4ALL. This is an initiative that will enhance the early warnings for the agriculture sector, and this MOU, this has been signed for the next 10 years, correct? That is from 2024 to 2033, correct? Take a note of it. Next, if we talk about Food and Agriculture Organization here, who is the Director General? Q Dongyu. Where is the headquarter of Food and Agriculture Organization? It is in Rome, Italy. And for WMO, who is the Secretary General here? Celeste Solo. And 193 members are there, and the headquarters is in Geneva, Switzerland. Next is UNAIDS 2024 Global AIDS Update. Here globally 39.9 million people are living with HIV in 2023. See, HIV, human immunodeficiency virus, correct? And if you are following the news on daily basis, then you must have seen that new vaccine have also been launched, which taken twice a year can eliminate AIDS, this HIV AIDS, right? So this is just an extra news. But coming back to our topic, that is UNAIDS for 2024 Global AIDS Update. Globally 39.9 million people living with HIV in 2023, correct? And approximately 30.7 million people live with HIV were receiving antiretroviral therapy in 2023. That means it can remove this HIV, but you know, once HIV is caused, it becomes very difficult, right? In this HIV, remember, the deficiency of a person becomes very weak, right? Say for example, if you are having or small infection or small cut also becomes very difficult to heal. Say for example, there was a cut on your body because of a nail, right? Or because of a blade or because of knife, then that cut will take very long to heal, right? You will keep on bleeding, right? In these, the white blood cells are also effective. The deficiency, all right, the fighting capacity of your body highly decreases in this HIV AIDS, correct? And this report states that around 39.9 million people living with HIV in 2023. Also, person having this HIV are highly in, we are seeing an increase in the Middle East and North African region, that is the MENA region, Eastern Europe, Central Asia, Latin America. Also there the stigma and discrimination is also there in the, if a person faces or is suffering from this disease. Then next, if we talk about UNAIDS, where is the headquarter? It is in Geneva, Switzerland. Moving on. Here you can see there are some challenges and inequalities in this. Despite 39% global reduction in new HIV infections since 2010, infections are rising in the Middle East and North Africa region, Eastern Europe and Central Asia and Latin America. And the gender inequality increased the risk for adolescents, girls and young women, particularly in the past of Africa, to have this disease. Next, Zimbabwe, they have joined the UN Water Convention to strengthen the transboundary water cooperation. We saw this in demo question also, right? That it is Zimbabwe. This is a South African country and they have joined the Convention on the Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes. Correct? This showcased the political will for cross-border water cooperation, and Zimbabwe, they became 54th party or 54th country to join this UN Water Convention and the 11th African nation to join this treaty. Next is banking and finance. Recently, Asian Development Bank has approved $200 million loan to expand metro rail network and urban mobility in the Nagpur city. Where is this Nagpur? Nagpur is in Maharashtra, right? So it is Asian Development Bank. They have approved $200 million and this will be a loan, right? And this will be basically for the metro rail network and urban mobility to enhance the connectivity within the Nagpur areas, right? So that urban areas connectivity becomes more feasible. And also here eco-friendly public transport will be enhanced. Correct? Take a note of this. Then if we talk about Asian Development Bank,
Who is the president here? Masatsugu Asakawa. Where is the headquarter? It is in Manila, Philippines. Next is cash free payments. They have received the payment aggregator cross-border license from RBI. So this Cash Free Payments India Limited, this is a Bengaluru, Karnataka based. This is one of the first payment aggregator in India that has received the payment aggregator cross-border license from RBI to operate in the cross-border payment space. Here Cash Free Payments is one of the first non-banks to secure this payment aggregator cross-border license. That means with the help of this license, you will be able to see that the payments that is done between the countries in India as well as abroad, it will help the exporters here. It will help the freelancers to make those payments and to receive those payments between India as well as other parts of the world, because we know that everything is going global now, right? So a better payment and secure system can be there, and for the same reason recently RBI granted cash free payments here, right, with this license. And question can be asked in such way that which is the first non-bank to secure this payment aggregator cross-border license? It will be cash free payments. Next, here you can see this license enables the entities to process cross-border payment transactions for the import and export of permissible goods and services, right? Next is RBI. They have cancelled the license of Uravakonda Cooperative Town Bank, that is in Andhra Pradesh. I repeat, that is RBI, correct? And they have recently cancelled the license or certificate of registration, that is your license, of the Uravakonda Cooperative Town Bank Limited, that is in Andhra Pradesh. And this is because of the inadequate capital and earning prospectus of this bank, and it has failed to comply with the requirements of the Banking Regulation Act of 1949. Correct? And now this bank will be liquidated, and we know once bank is liquidated, the people who have the account in those accounts, they can get a maximum of to 5 lakh rupees. Next, economy and business. Recently TASL, that is your Tata Advanced Systems Limited, right, and Margname, right, that is, let me show you here, Tata Advanced Systems Limited, and or we can say France based Airbus Helicopters, they have recently signed an agreement to establish H125 helicopters assembly unit in India. I repeat, that is Tata Advanced Systems Limited and Airbus, they will be together setting a supply assembly unit of H125 helicopters in India. Correct? And remember, this final assembly line, FAL in short form, this final assembly line is the first private sector helicopter assembly facility that will be in our India, and this will be producing these H125 helicopters for India and the neighboring countries. This will be first made in India H125s that are expected to start in 2026. This H125, this is the world's best selling single engine helicopter and the only helicopter to have landed on the Mount Everest also. Remember this. If we talk about TASL, Tata Advanced Systems Limited, who is the managing director and chief executive officer here? Sukran Singh, headquartered in Hyderabad, Telangana, and it was established in 2007. Next is Indian Navy. They have signed an MOU with IOCL for green hydrogen e-mobility. See, Indian Navy, they signed this memorandum of understanding with IOCL, that is Indian Oil Corporation Limited, and they will be promoting the use of green hydrogen. And we know that why green hydrogen, because when we burn this fuel green hydrogen, the amount or the residue that is released is water vapors, right? Water in the form of vapors, that is green hydrogen. And we know that hydrogen comes in many colors, red, orange, blue, but these all contain some trace of carbon when it is burned. It is just the green hydrogen that does not release any carbon amount on its burning. Correct? And it is Indian Navy, they signed this MOU with IOCL for green hydrogen promoting e-mobility, and this e-mobility will be basically for the heavy locomotor engines, right? That is basically your trucks, bus, right? They will be using these green hydrogen fuel cell, right? They can be in various buses. Even IOCL operates 15 fuel cell buses between Gujarat and Delhi,
right, on a trial basis. Next, who is CNS of Indian Navy? Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi, headquartered in New Delhi. Then if we talk about IOCL, Indian Oil Corporation Limited, who is the chairman? Shrikant Madhav Vaidyaji, and headquarters is in New Delhi. Moving on, next is awards and recognitions. Shah Rukh Khan, as you can see him in the picture, he became the first Bollywood actor to be honored with the customized gold coin by Grévin Museum of Paris. Right? So the Grévin Museum, where is it located? It is in Paris, France, where the Olympic Games will be held recently. And they have honored the Bollywood superstar Shah Rukh Khan with the customized gold coins that bears his name and images like him. You can see Shah Rukh Khan written here, and this is the image of Shah Rukh Khan. Correct? And he became the first Indian actor with this achievement, and he is the only second Indian to be honored with a coin at the museum after Mahatma Gandhi. So the first person here that was honored was Mahatma Gandhi, and now the second Indian is Shah Rukh Khan. Correct? Also remember, the Grévin Museum, they unveiled the text, or we can say his wax statue, not text, wax statue at the Grévin Museum, and it was unveiled at 2008. Next is science and technology. Recently, GSL. GSL is your Goa Shipyard Limited. They have launched Yard 1258 Triput, that is India's first indigenous advanced frigate for the Indian Navy. I repeat, it is Goa Shipyards Limited. Right, this is a public sector undertaking that comes under the Ministry of Defence, and they have launched this GSL Yard 1258 that has been named as Triput, and this is the first indigenous advanced frigate for the Indian Navy. This ship was launched by Rita Sridharan, the First Lady of Goa, in the presence of P.S. Ratan Pillai, the Governor of Goa. Correct? Also remember, Ministry of Defence and Goa Shipyard Limited, they signed the contract for the building of 2 Triput class frigates on 25th of January 2019. This Triput, this as you can see in the picture here, this is 124 meters long, 15.5 meters wide, and it is propelled by 4 gas turbines. Next, who is the Chief Minister of Goa? Pramod Sawant. Capital here of Goa? Panaji. Next is DRDO. They have successfully flight tested phase 2 ballistic missile defense system. See, it is DRDO. They have recently conducted the flight test of the phase 2 ballistic missile defense system, and this test demonstrated India's capability to defend against any ballistic missile 5,000 kilometers away also. Correct? I repeat, this ballistic missile defense system test, that is the phase 2, was tested by DRDO, and this test here recently demonstrated that India has the capability to defend against any ballistic missile with 5,000 kilometer range also. Correct? That means any missile, ballistic missile that is coming beyond or is within the range of 5,000 kilometer circumference or radius, then we can take it down. Then if we talk about DRDO, who is the chairman here? Dr. Samir V. Kamath. Next is related to sports. IOA, Indian Olympic Association, named BPCL as the principal sponsor for 4 years. So Bharat Petroleum Corporation Limited, this is a Maharatna company, and it has been now declared as the official principal sponsor for the next 4 years, from the Paris Olympics 2024 to the Los Angeles Olympics 2028. Right? So Indian Olympic Association named Bharat Petroleum Corporation Limited as their principal sponsor. Next important is World Drowning Prevention Day is observed on 25th of July. And what is drowning? When drown is basically डूबना in Hindi. Correct? When we know that because of not knowing of swimming or because of some incidents, there are many incidents, tragic incidents also of the drowning of various families, right? Because sometimes the water level becomes so rise, or when the peoples are on tourism or when they are on going out for say party purpose, right? They stand near the river and suddenly there is high
flow of the water or the water level increases, so that also impacts, right? That is your drowning, right? And this World Drowning Prevention Day is observed on 25th of July, correct? And this marks the observance of the 4th edition of the World Drowning Prevention Day in 2024. The theme here that you need to remember here is anyone can drown, no one should. And this theme is under WHO's has chosen slogan that is seconds can save a life. Correct? For the first time it was observed in 2021 as this is the 4th edition. Next is World In Vitro Fertilization Day observed on 25th of July. See, this in vitro technology or this IVF technology is basically also known as the test tube babies. Correct? And it is one of the greatest innovation in the reproductive science. This day also honors the contribution and the progress of the embryologist in infertility and reproductive medicine. Also remember 25th of July, this commemorates the birth date of Louis Brown, the first ever test tube baby. He was born on 25th of July 1978 in Manchester, England. Correct? Take a note of this. Next is state news. AR, that is your Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chovna May presented rupees 993 crore rupees deficit budget for FY25. This budget estimates is around 35,840 crore rupees. Right, the total budget estimate was 35,840 crore rupees, marking a 20.585% increase in the FY24 as compared to that of FY24. Right, this is for FY25, so we can say this was an almost 20.85% increase as compared to that of FY24. This budget will be focusing on healthy human resource, robot infrastructure and vibrant economy. Who is the governor of Arunachal Pradesh? Lieutenant General K.T. Parnaik. Who is the Chief Minister of Arunachal Pradesh? Pema Khandu. Right? So that's all for the day, friends. Now let's move to the one-liners. CDOT, they have signed an agreement with IIT Roorkee and IIT Mandi for the development of cell-free 6G access points. Then world's most powerful passport of 2024, it is of Singapore and India's stands at 82nd position. Then WMO collaborated with Food and Agriculture Organization of UN to enhance early warnings for the agriculture sector. Then UNAIDS 2024 Global AIDS Update. Here globally 39.9 million people living with HIV virus in 2023. Then Zimbabwe, they have joined the UN Water Convention to strengthen transboundary water cooperation. Next is Asian Development Bank. They have approved $200 million loan to expand metro rail network and urban mobility in Nagpur. Cash-free payments received the payment aggregator cross-border license from RBI. RBI has cancelled the license of Uravakonda Cooperative Town Bank of Arunachal Pradesh. Then TASL and Airbus, they have signed a contract to establish a assembly unit in India for H125 helicopters. Indian Navy, they signed an MOU with IOCL for green hydrogen e-mobility. Then Shah Rukh Khan, he became the first Bollywood actor to be honored with customized gold coin by Graven Museum Paris, and he became second Indian to be honored with this coin. First was Mahatma Gandhi. Next, GSL Goa Shipyard Limited, they have launched Yard 1258 Triput, that is first indigenous advanced frigate for the Indian Navy. Then DRDO successfully flight tested the Phase 2 ballistic missile defense system. Indian Olympic Association named BPCL as the principal sponsor for the 4 years. Then World Drowning Prevention Day observed on 25th of July. World IVF Day observed on 25th of July. And Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Chovna May presented the 993 crore deficit budget for FY25. Right? I repeat, not Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chovna May. So that's all for the day, friends. Let's move to some revision part. This will be a very important session and it will help you in your learning. Next है, who has recently won the WOW World Literacy Prize from the World Organization of Writers? तो वो है ममता जी सागर. राइट, इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया, इन्होंने जीता WOW वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज फ्रॉम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स. एंड इसके अंडर ये जो इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 7th वर्ल्ड लिटरेसी फेस्टिवल. ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका नाइजीरिया में हुआ था.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 2024 जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये हमारी इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को यहाँ पे सम्मानित किया गया है जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड से फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वन द सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो किनको सम्मानित किया गया है, वो है धीरेन्द्र कुमार सन्याल। इनको यहाँ पे इन्होंने जीता सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट, ड्यूरिंग द 61st नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को था, राइट। इस इवेंट के दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, इन्होंने जो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 2324 फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो ये है INS शारदा। इसको याद रखेंगे, INS शारदा ने अभी 19 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे रिलीज किया था। 11 ईरान से बिलोंग करते हैं एंड 8 आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। इनको यहाँ पे बचाया था, ये हॉस्टेज लिए गए थे बाय द पायरेट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड INS शारदा का ये ऑपरेशन था जिन्होंने यहाँ पे लोगों को, इन क्रू मेंबर्स को बचाया। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय साउथ एशियन एसोसिएशन। वो है अवंतिका वंदनापू, राइट, अवंतिका वंदनापू। इनको ऑनर किया गया साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से बाय साउथ एशियन एसोसिएशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन USA। एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल एंड इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसके लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव द जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। तो वो है गगनदीप कैंग। इनको ये वो पहली इंडियन वीमेन बनी है, फर्स्ट इंडियन वीमेन जिनको यहाँ पे रिसीव हुआ, जिन्होंने रिसीव किया जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 को। नेक्स्ट, who has been recently declared as the recipient of the 2023 ACM AM Turing Award, जो कि नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग जाना जाता है। वो है एवी विंगडरसन। ये इजराइल से बिलोंग करते हैं, USA में रहते हैं एंड यहाँ पर इनको $1 मिलियन के कैश प्राइज से भी सम्मानित किया गया एंड जो इनके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार। इन्होंने प्रेजेंट किया गैलेंट्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड टू द नेवल पर्सनल। किस इंडियन नेवल शिप को अवार्ड किया गया, अवार्डेड द CNS ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए किस INS को यहाँ पे सम्मानित किया गया, वो है INS वलसूरा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज इज नॉट फीचर्ड इन द 21st एडिशन ऑफ द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 लिस्ट रिलीज्ड इन अप्रैल। तो सभी यहाँ पे लिस्ट है एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी, राइट। एंड इस लिस्ट में कितने इंडियंस थे ये भी पूछा जा सकता है, तो टोटल 8 इंडियंस इस लिस्ट में रहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट रिवील्ड एज द 5 वाइजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक इन अप्रैल। तो इनमें से अगर हम देखें कौन नहीं है, तो पैट क्यूमिंस यहाँ पर नहीं है, बाकी चारों रहेंगे। एंड इसके अलावा एक और रहेंगे, वो कौन है, उनका क्या नाम रहेगा, वो है मिशेल स्टार्क, राइट। तो ये 5 वाइजडन क्रिकेटर्स हैं ऑफ द ईयर इन 2024 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द आर्यभट्टा अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो किनको आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो है पुरावंकरा, वो है पवलूरी सुब्बा राव, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है आर्यभट्टा अवार्ड से बाय ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली जीता 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 को फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है पूरावंकरा लिमिटेड। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, इन्होंने जीता 15th CIDC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का विश्वकर्मा अवार्ड। पूरावंकरा लिमिटेड ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है इन इंडिया एंड इनको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। इनका जो कैंपेन था जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, इस कैंपेन का नाम था मिलियंस या मिलियन वेल्स फॉर बेंगलुरु, राइट। क्योंकि बेंगलुरु हम जानते हैं अभी पानी की समस्या से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है, राइट। इसीलिए इस कैंपेन के लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इज आर होमवर्क। फर्स्ट इज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड इज इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू डिजीज, and third is India's ranking in major reports and indices. Also friends,
If you find the session interesting and informative, do like the video and comment below and let us know what are your views for the same. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम 17 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम बात करेंगे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के बारे में। इंडिया की क्या रैंक रहेगी और इंडिया में जो इंडियंस हैं उनको कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। देन WMO ने FAO के साथ क्यों कोलैबोरेट किया। देन जिम्बाब्वे ने अभी क्या ज्वाइन किया है एंड उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो आज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. And हमारी वीडियो के जो लास्ट के विनर हैं वो हैं गोकुल गोविंदन 4449। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए मेल पर या फिर इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड विल मेक श्योर कि हमारी टीम आपको आपका रिवॉर्ड जो है 1 साल की करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन वो पहुंचा सके। फिर आ जाते हैं डेमो क्वेश्चन पे। ये आपको बताएगा कि जो ऑप्शन रिवीजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। तो ये UN वाटर कन्वेंशन इन्होंने ज्वाइन किया है। किस कंट्री के द्वारा ज्वाइन किया गया? जिम्बाब्वे के द्वारा ज्वाइन किया गया। ये बेसिकली इसको सिंपल टर्म्स में समझ के चलें तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हम जानते हैं कि वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो उसको क्लीन रखने के लिए, उसको सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए एंड वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे से फ्लरिश हो सके उस रीजन में, एंड जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम तमीज़ से तरीके से उसको यूज़ कर सकें, राइट। जैसे मान लो जिम्बाब्वे के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनको भी वाटर बॉडीज़ करने लग रही हैं, तो उसको कॉपरेशन में तरीके से यूज़ करना, करेक्ट। यहीं पे अगर हम स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया 39वां मेंबर बन गया जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया था? फॉर द पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। यहाँ पे स्वीडन बना था 38th कंट्री जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन किया था, एंड स्विट्जरलैंड बना था 37th कंट्री जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन किया था। रोमानिया की बात करें तो रोमेनिया एंड रोमेनिया के साथ साथ बुल्गारिया, ये वो 2 कंट्री बने हैं जिन्होंने अभी ये शेंगेन एरिया को ज्वाइन किया है, राइट। यूरोप का जो ID फ्री, चेक फ्री ट्रैवल जोन है, उनको ये ज्वाइन करने वाली 2 कंट्री बनी है, रोमेनिया एंड बुल्गारिया। तो ये थे आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन आप हमारी डेली करंट अफेयर्स क्विज पे भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 जगह पे अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन एंड दूसरा है वेबसाइट पर, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर, एंड वेबसाइट है careerscloud.in। ये माइंड मैपिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. फिर हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। तो अभी सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। इन्होंने IIT रुड़की एंड IIT मंडी के साथ यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि सेल फ्री 6G APs एक्सेस पॉइंट्स को यहाँ सेटअप किया जा सके। देखो 3rd जनरेशन इंटरनेट आया, 4th जनरेशन आया,
5th जनरेशन आया और अब आ रहा है 6th जनरेशन। हमने देखा 4G कितना फास्ट है, 5G और फास्ट, 6G और फास्ट रहने वाला है। इवन अगर आप देखेंगे ना अभी आर्टिफिशियल रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये चीज़ें आएंगी आने वाले टाइम में, करेक्ट। और इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है एंड उसी को यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये एक यूज़ केस बताया मैंने आपको, सिर्फ इसी के लिए नहीं बट इट विल बी वन ऑफ द बिग यूज़ केस आने वाले टाइम पे। तो यहीं पे 6G क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी बेटर सर्विस प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो इसके लिए सेल फ्री जोन्स बनाए जा रहे हैं। ये सेल फ्री जोन क्या है बेसिकली, ये समझिए आपका जो नॉर्मल ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है ना उसमें टोपोलॉजीज के ऊपर वो काम किया जाता है, राइट। एंड एक मोबाइल फोन आपके एक कस्टमर से आप वहाँ से कनेक्टेड रहता है, मतलब अगर एक कनेक्शन बन गया तो वो आपको बन गया कनेक्शन, राइट। उसमें आप दूसरे उसको ऐड नहीं कर सकते यूज़र को। वहीं पर जो ये सेल फ्री होगा ना, ये आपका एक मीमो होगा, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट रहेगा इसमें, एंड इसके थ्रू आप कई सारे यूजर्स को एक साथ यहाँ पे कैटर कर पाएंगे। इसमें हम देखेंगे जो डेड जोन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ में बढ़ावत देखने को मिलेगी, डाटा स्पीड्स बढ़ जाएगी एंड जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है ना वो बहुत बेटर हो जाएगी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। यहीं पे सी डॉट की बात करें तो सी डॉट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अभी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का ये इंडेक्स रिलीज किया गया जो कि आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये रिलीज किया गया। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसमें, 82 सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट कौन रहा है यहाँ पे, सिंगापुर, सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे रहा। एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडियंस को कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री मिल रही है। सिंगापुर को 195 कंट्रीज़ में यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है। एंड यहीं पर हम देखेंगे कि 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सेकंड स्पॉट पर आई एंड 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि थर्ड स्पॉट पर आई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी कोलैबोरेट किया ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लाया जा सके। देखो WMO जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सैटेलाइट की मदद से आपको वेदर का डाटा प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, जिससे क्या होता है वो बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं। कब क्रॉप ग्रो करनी है, कब अगर बाढ़ आ सकती है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी एरिया में सूखा पड़ सकता है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पे होगी। बारिश होगी तो कितनी जल्दी हमें बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, ये सारी चीज़ों का बहुत हेल्प करता है, राइट। एंड अगर बाढ़ आती है, सूखा आता है, कोई भी कैलेमिटी आती है तो उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लाने की बात की गई एंड इसके लिए WMO ने कोलैबोरेट किया UN के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट। और यहाँ पे इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल ये लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो MOU साइन किया गया इन दोनों के बीच में, ये 10 साल के लिए MOU साइन किया है, मतलब 10 साल तक ये एक दूसरे का कॉपरेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे वेदर, ओशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड अमन के लिए। एंड यहीं पे याद रखेंगे यही जैसे मैंने बोला 10 साल के लिए 2024 से 2033 तक, ठीक है। यहीं पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, इटली में, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। WMO की अगर मैं बात करूं, सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे, सेलेस्टी सोलो। 193 मेंबर नेशंस है एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं UN एड्स की, राइट। अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि ग्लोबली 39.9 मिलियन लोग हैं जो HIV वायरस से सफ़र कर रहे हैं 2023। देखो HIV एड्स ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, करेक्ट। ये बेसिकली आपका एक ऐसी डिजीज़ होती है, राइट, मोस्टली आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, STD इसको बोला जाता है। एंड मेनली इसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। आपको एक बार बुखार हो जाएगा तो बहुत लंबा बुखार चलेगा, आपको हल्का सा कट लग जाएगा, अगर आपके कहीं पे भी मान लो फिंगर पे कट लग गया तो उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इसमें बहुत उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने कट लगने की बात करी तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन K, जो कि आपको इस कट भरने में काम करेगा, ये भी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज़ है, बट इसमें यहाँ पे याद रखेंगे HIV में आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो बहुत ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये आपकी ड्यूरिंग सलाइवा या फिर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स उनसे ये ट्रांसमिट होती है, ठीक।
एंड इवन अगर हम देखें तो अभी रिसेंट में न्यूज़ आ रही है कि HIV एड्स के लिए ना एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई है कि साल में उसको 2 बार लो उन इंजेक्शंस को, एंड उससे आपका HIV ट्रीट होने के पूरे चांसेस होते हैं, वरना देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका HIV ट्रीट हो। ठीक है, अगर हम देखें मीना रीजन में मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। इन्होंने ज्वाइन किया UN वाटर कन्वेंशन को टू स्ट्रेंथन द ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉपरेशन, ये भी हमने देखा था। ये 54th पार्टी बन गई है टू ज्वाइन दिस, एंड 11वां अफ्रीकन नेशन टू ज्वाइन दिस ट्रीटी, राइट। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है ताकि मेट्रो रेल नेटवर्क को एंड अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके इन नागपुर कहाँ पर आ जाता है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो ये लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, कितना लोन है? $200 मिलियन का लोन रहेगा, एंड मेट्रो कनेक्टिविटी एंड आपकी जो अर्बन मोबिलिटी है उसको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी, ताकि एक क्लीन एनवायरनमेंट बना रह सके एंड सस्टेनेबल यहाँ पे सस्टेनेबली एंड इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे लाया जा सके, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। एंड यहाँ पे $200 मिलियन का ये लोन अप्रूव करा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट मात्सुगु असाकावा, प्रेसिडेंट और हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कैश फ्री पेमेंट्स। इन्होंने ये कैश फ्री पेमेंट्स बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, एंड इन्होंने पेमेंट्स एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस रिसीव किया RBI से। मतलब जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें पेमेंट्स भी बाहर भेजनी पड़ेगी और बाहर से पेमेंट भी रिसीव होगी। तो उस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मोर सिक्योर बनाने के लिए एंड उसको कैरी आउट करने के लिए अभी रिसेंटली कैश फ्री पेमेंट्स, ये वो पहला नॉन बैंक बन गया है, राइट, जिन्होंने सिक्योर कराई है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस को RBI से, राइट। ये पहला बन गया है, याद रखेंगे, पहला नॉन बैंक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इससे क्या होगा, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, राइट, गुड्स की या सर्विसेज की, इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में, तो वो आपकी कैश फ्री पेमेंट गेटवे से होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ उरावा-कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक। आई रिपीट, उरावा-कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का जो लाइसेंस है, राइट, वो RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। ये बैंक कहाँ पर है? ये बैंक आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, एंड बिकॉज ऑफ फेलिंग फॉर ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्टस इस बैंक का नहीं था, एंड जो भी ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है उसके रिक्वायरमेंट यहाँ से कंपाइल नहीं कर पाया ये, इसीलिए RBI ने कैंसिल कर दिया इस बैंक का लाइसेंस। एंड यहाँ पर अब इस बैंक को लिक्विडेट किया जा रहा है। तो लिक्विडेशन जब होती है बैंक की, तो जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको कितना मैक्सिमम अमाउंट मिलता है? 5 लाख रुपये तक का पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस। तो अभी TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, राइट, एंड एयरबस, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ताकि H125 हेलीकॉप्टर्स की एक फाइनल असेंबली लाइन FAL को सेटअप किया जा सके इंडिया में। एंड ये इंडिया में लगने वाली पहली फर्स्ट इंडियन फाइनल असेंबली लाइन होगी फॉर H125 हेलीकॉप्टर्स। ऐसे याद रखिएगा, H125 वो हेलीकॉप्टर है, एक लौता हेलीकॉप्टर है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, राइट, जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने लैंड किया। एंड ये जो आपके H125 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, करेक्ट। ये आपके सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे? सुक्रांत सिंह। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इंडियन नेवी। इन्होंने एक MOU साइन किया IOCL के साथ ताकि ग्रीन हाइड्रोजन ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने की बात की जा रही है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जब हम इस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करते हैं तो वाटर वेपर निकल के आते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर भी बात की जा रही है, राइट। एंड इवन अभी हम देखेंगे कि IOCL के साथ यहाँ पे इंडियन नेवी ने पार्टनर किया ताकि जो इनके ट्रक्स हैं, जो राइट उनके टेम्पूज हो जाते हैं, जो बसेज होती हैं, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सके ताकि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। एंड ये आपका एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट पे रहेगा कि कैसे वो वहाँ पे वर्क करते हैं। इवन आप देखेंगे करंटली 15 फ्यूल सेल बसेज ऐसी हैं अक्रॉस गुजरात एंड दिल्ली NCR रीजन जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क कर रही हैं। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहेंगे यहाँ पे? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 26 जनवरी 1960 को इसको फाउंड किया गया था। IOCL की बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य जी, एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस पर आते हैं तो शाहरुख खान ये वो पहले बॉलीवुड एक्टर बने टू बी ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। देखो ये जो ग्रेविन म्यूजियम है ना, इन्होंने इससे पहले एक और इंडियन को जो बने थे, पहले इंडियन बने थे जिनको इस गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया था, वो थे महात्मा गांधी जी। एंड यहाँ पे शाहरुख खान सेकेंड इंडियन एंड फर्स्ट एक्टर बन गए हैं जिनको ऑनर किया गया विद दिस ग्रेविन म्यूजियम पेरिस के द्वारा विद दिस कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन। इस कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन पे आप देखेंगे इनका नाम है और इनकी फिगर भी रहेगी, इनकी पिक्चर भी रहेगी। ठीक है, ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा ही याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। एंड इनका वैक्स स्टैचू शाहरुख खान का भी लाया गया था, इनके द्वारा अनवेल किया गया था 2008 में। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया यार्ड 1258 त्रिपुट को, जो कि पहला इंडिजीनियस एडवांस फ्रिगेट रहेगा फॉर द इंडियन नेवी। राइट, तो GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है एंड इन्होंने पहला शिप लॉन्च किया है, ये पहला इंडिजीनियस फ्रिगेट, एडवांस फ्रिगेट इंडियन नेवी के लिए, जिसका नाम है त्रिपुट। ये लॉन्च किया गया रीटा श्रीधरन जी के द्वारा। ये फर्स्ट लेडी ऑफ गोवा है एंड द वाइफ ऑफ PS श्रीधरन पिल्लाई, जो कि गवर्नर है गोवा के। अगर त्रिपुट की बात करें तो 124 मीटर ये लॉन्ग रहेगा, 15.5 मीटर ये डीप रहेगा एंड 4 गैस टर्बाइंस रहेंगे इसके। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत, राइट, एंड कैपिटल पणजी। नेक्स्ट पे आते हैं फिर DRDO ने सक्सेसफुली भी फ्लाइट टेस्ट किया फेज 2 ब्लास्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम का। देखो जो ये फेज 2 है ना ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बेसिकली क्या काम करेगा, जो भी ब्लास्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगी उसको खत्म कर देगा। राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा इंडिया के डिफेंस सिस्टम में। राइट, एंड DRDO के द्वारा ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, फ्लाइट टेस्ट ऑफ द फेज 2 ऑफ द ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसको टेस्ट किया गया फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, DRDO की बात करें तो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1958 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने नेम किया BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। BPCL जो है महारत्ना कंपनी है ये, एंड ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर बनी है 4 साल की, पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स से लेके लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ड्राउनिंग होता है डूबना, राइट, तो डूबने से बचाने के लिए, एंड हर सेकंड इंपॉर्टेंट होती है डूबने से बचाने के लिए, करेक्ट, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, जो कि 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम याद रखेंगे, जैसे चौथा डे है, थीम है एनीवन कैन ड्राउन नो वन शुड, एंड WHO का भी एक स्लोगन है सेकंड्स कैन सेव अ लाइफ। पहली बार इस डे को 2021 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड IVF डे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे। बेसिकली इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं, IVF टेक्निक को, कि आप टेस्ट ट्यूब से बेबीज यहाँ डेवलप कर रहे हैं। एंड रिप्रोडक्शन की अगर साइंस में देखें तो ये बहुत बड़ा हमारे द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा एक रिप्रोडक्टिव इनोवेशन करा गया, जो कि बहुत बड़ा इनोवेशन है। राइट, जिन लोगों को यहाँ पे, जिन कपल्स को बेबी नहीं होता है तो वो IVF की मदद से भी बेबीज यहाँ पे कर सकते हैं। इवन बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने IVF के थ्रू अपना चाइल्ड कराया। ये डे 25 जुलाई को ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि लुइस ब्राउन फर्स्ट एवर टेस्ट ट्यूब बेबी थे एंड 25 जुलाई 1978 में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी रिसेंटली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौमा मेन, ये कहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं? अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौमा में इन्होंने प्रेजेंट किया 993 करोड़ रुपीज़ का डेफिसिट बजट फॉर FY25। ये जो बजट है ये 20.85% बजट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ FY24। तो डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। अरुणाचल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रॉबोट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वाइब्रेंट इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे काम करने की बात की गई। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू जी। नेक्स्ट पे आते हैं फिर वन लाइनर्स। C. इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट विद IIT रुड़की एंड IIT मंडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। वर्ल्ड्स मोस्ट पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। एंड इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 82। दैन वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कोलैबोरेट किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू एनहेंस अर्ली वार्निंग्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर।
देन यूएन एड्स 2024 ग्लोबल एड्स अपडेट की बात करें तो ग्लोबली 39.9 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV इन 2023। जिम्बाब्वे ने ज्वाइन किया यूएन वाटर कन्वेंशन टू स्ट्रेंथन द ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉपरेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $200 मिलियन का लोन टू एक्सपेंड द मेट्रो रेल नेटवर्क एंड अर्बन मोबिलिटी इन नागपुर। कैश फ्री पेमेंट्स इन्होंने रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस, जो कि फर्स्ट नॉन बैंक बन गया है इंडिया में जिन्होंने ये लाइसेंस रिसीव किया फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस ऑफ यूराकावांडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश में। देन TASL एंड एयरबस, इनको बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ टू एस्टैब्लिश H125 हेलीकॉप्टर असेंबली यूनिट इन इंडिया। दैन इंडियन नेवी ने साइन किया एक MOU IOCL के साथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ई मोबिलिटी। एंड शाहरुख खान वो पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए जिनको ऑनर किया गया कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से बाय ग्रेविन म्यूजियम, और जो कि पेरिस फ्रांस में है। एंड जो पहले इंडियन थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया यार्ड 1258 त्रिपुट को, जो कि पहला इंडिजीनियस एडवांस फ्रिगेट है फॉर इंडियन नेवी। देन DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फेज 2 ब्लास्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नेम्ड BPCL एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर 4 years। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को। वर्ल्ड IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे 25 जुलाई को। एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौमा मेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने प्रेजेंट किया 993 करोड़ रुपीज का बजट फॉर FY25। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों ये तो थे सेशन, अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट एट द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024। तो यहाँ पे SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन्होंने इस अवार्ड को 3rd कॉन्सिक्यूटिव टाइम यहाँ पर जीता है। करेक्ट, दैट इज they have received this achievement award for creating social development and impact during the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स। एंड SJVN की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो टीम है, जो इनका इनिशिएटिव है, उसके अंडर इन्होंने काफी काम किया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वन द वाव वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। तो वो है ममता जी सागर, राइट। इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया, इन्होंने जीता वाव वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज फ्रॉम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। एंड इसके अंडर ये जो इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 7th वर्ल्ड लिटरेसी फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका नाइजीरिया में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 2024 जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये हमारी इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को यहाँ पे सम्मानित किया गया है जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड से फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वन द सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो किनको सम्मानित किया गया है? वो है धीरेन्द्र कुमार सन्याल, इनको यहाँ पे इन्होंने जीता सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट, ड्यूरिंग द 61st नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को था, राइट। इस इवेंट के दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, इन्होंने जो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विद द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 2324 फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो ये है INS शारदा। इसको याद रखेंगे, INS शारदा ने अभी 19 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे रिलीज किया था। 11 ईरान से बिलोंग करते हैं एंड 8 आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। इनको यहाँ पे बचाया था, ये हॉस्टेज लिए गए थे बाय द पायरेट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड INS शारदा का ये ऑपरेशन था जिन्होंने यहाँ पे लोगों को, इन क्रू मेंबर्स को बचाया। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय साउथ एशियन एसोसिएशन। वो है अवंतिका वंदनापू, राइट। अवंतिका वंदनापू, इनको ऑनर किया गया साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से बाय साउथ एशियन एसोसिएशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन USA। एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल एंड इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसके लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव द जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। तो वो है गगनदीप कैंग, इनको ये वो पहली इंडियन वीमेन बनी है, फर्स्ट इंडियन वीमेन जिनको यहाँ पे रिसीव हुआ, जिन्होंने रिसीव किया जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 को। नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द रेसिपिटेंट ऑफ द 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग जाना जाता है, वो है एवी विंगडरसन। ये इजराइल से बिलोंग करते हैं, USA में रहते हैं, एंड यहाँ पर इनको $1 मिलियन के कैश प्राइज से भी सम्मानित किया गया। एंड जो इनके थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार, इन्होंने प्रेजेंट किया गैलेंट्री डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड टू द नेवल पर्सनल। किस इंडियन नेवल शिप को अवार्ड किया गया? अवार्डेड द CNS ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए किस INS को यहाँ पे सम्मानित किया गया? वो है INS वलसूरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज इज नॉट फीचर्ड इन द 21st एडिशन ऑफ द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 लिस्ट रिलीज्ड इन अप्रैल। तो सभी यहाँ पे लिस्ट है एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी, राइट। एंड इस लिस्ट में कितने इंडियंस थे ये भी पूछा जा सकता है, तो टोटल 8 इंडियंस इस लिस्ट में रहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट रिवील्ड एज द 5 वाइजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक इन अप्रैल। तो इनमें से अगर हम देखें कौन नहीं है, तो पैट क्यूमिंस यहाँ पर नहीं है, बाकी चारों रहेंगे। एंड इसके अलावा एक और रहेंगे, वो कौन है? उनका क्या नाम रहेगा? वो है मिशेल स्टार्क, राइट। तो ये 5 वाइजडन क्रिकेटर्स हैं ऑफ द ईयर इन 2024 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द आर्यभट्टा अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो किनको आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? वो है पुरावंकरा, वो है पवलूरी सुब्बा राव, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है आर्यभट्टा अवार्ड से बाय ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है किस कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली जीता 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 को फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है पूरावंकरा लिमिटेड। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, इन्होंने जीता 15th CIDC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का विश्वकर्मा अवार्ड। पूरावंकरा लिमिटेड ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है इन इंडिया, एंड इनको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। इनका जो कैंपेन था जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, इस कैंपेन का नाम था मिलियन वेल्स फॉर बेंगलुरु, राइट। क्योंकि बेंगलुरु हम जानते हैं अभी पानी की समस्या से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है, राइट। इसीलिए इस कैंपेन के लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं होमवर्क। पहला है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड है इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू डिजीज, थर्ड है इंडियाज रैंकिंग इन मेजर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं डेली बेसिस पे ला सकूँ।